हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello children, welcome to Apni Commerce classes. I am Preeti Arora and I'll be teaching you English. In English children, you know that we have two books, literature books. One is your Flamingo and the other one is Vistas. I'll be covering up both the books as well as I'll be covering all the writing topics, right? Now children, generally we've seen that children are very scared of English. बोलते हैं मैम बच्चे कि मैम हमें इंग्लिश आर्टिकल्स लिखने में प्रॉब्लम होती है, लेटर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है मैम, बिकॉज एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम होती है, आंसर्स जो है लिटरेचर के वो फ्रेम करने में प्रॉब्लम होती है, दे आर स्कैर्ड. बट व्हाई यू आर स्कैर्ड? जस्ट टेल मी दैट. द रीजन बिहाइंड कि एक फियर है. यू नो इंग्लिश. बच्चे कहते हैं मैम इंग्लिश नहीं आती. आई रियली डोंट अग्री विद दैट, बिकॉज सिंस चाइल्डहुड आप लोग क्या कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ रहे हैं. All your subjects, right? That means you know English, then only you are able to understand. The only thing is कि sentence formation नहीं आ पाता है. Once you have to frame a sentence and then only you'll be able to write. So a very simple mantra I'm giving you. Every day children, just every day give 15 minutes to English. I'm telling you, just give 15 minutes to English. And slowly and gradually, as in my further videos, I'll be explaining you how you have to give only 15 minutes. And by the end, you know, when your boards come, जब तक आपके boards आएंगे, till that time you'll be fully prepared. Your English will be fully prepared. जो एक fear होगा, जो लिखने का, आर्टिकल लिखने का या जो लेटर राइटिंग या आंसर प्रेजेंट करने का, you will be very surprised कि वो बिल्कुल क्या होगा, बाहर होगा, and you will be feeling very comfortable. You will be able to give the entire paper in a very comfortable manner, right? So today we'll be starting up with Flamingo chapter. Chapter, the last lesson of your Flamingo book. The author of this lesson is Alphonse Daudet. He was a French novelist and a short story writer. Now children, you can see some lines I have underlined. आप कुछ देख सकते हैं, कुछ lines underlined हैं, right? ये जो lines हैं, ये बहुत important lines हैं एक बहुत ही important बोर्ड के short question की. 30-40 वर्ड्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं. और साइड में एनीवेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड I would request you to write down the lines, why these lines or what kind of a question is framed, किस तरह का क्वेश्चन है. साइड में लिख लीजिए बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. मीन्स ये लाइंस जो हैं ये बताती हैं कि कौन सा बैकग्राउंड था, क्या था जिसमें जब ये स्टोरी लिखी गई थी. तो जनरली जो वर्ड्स आते हैं क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में वर्ड दिखाई देगा बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज अंडरलाइन दीज लाइन्स and also right, keep a pen or a pencil in your hand when I'm teaching you so that you can keep underlining and all important questions you can write down. Okay, let's continue. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War. Means last lesson जब set हुआ था, लिखा गया था, ये कब लिखा गया था? जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर हो रही थी, in which France was defeated by Prussia. और जिसमें कौन हार गया था? यस यू आर राइट, फ्रांस वॉज डिफीटेड. किससे? प्रशिया से. नाउ लेड बाय बिस्मार्क. लेड बाय बिस्मार्क मीन्स हु वॉज लीडिंग दिस वॉर? बिस्मार्क. नाउ यू राइट दिस लाइन और नॉट, यू राइट दीज वर्ड्स और नॉट, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. Prussia के उस टाइम पे क्या क्या नेशंस थे प्रशिया के अंडर में? जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Now, इस स्टोरी में क्या दिखाया है, जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं वो अल्सास एंड लोरेन के बारे में है स्टोरी. और ये दोनों जो फ्रांस के जो दो मेन डिस्ट्रिक्ट्स है, प्लीज सर्कल दीज नेम्स. पूरी स्टोरी में ये नेम्स आएंगे और ये यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स. ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स जो थे अल्सास एंड लोरेन, ये किसके पास चले गए थे? प्रशियन के हैंड्स में. क्यों? बिकॉज फ्रांस वॉज डिफीटेड. नाउ लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग. Children, let's start reading the first paragraph. Now in this paragraph, I hope you all can see that I have underlined again some lines as well as I have circled also some words.
ये क्या है? ये कुछ लाइंस जो मैंने अंडरलाइन करी हैं, ये अगेन ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं शॉर्ट आंसर के लिए भी और लॉन्ग आंसर के लिए भी, राइट? एंड डेफिनेटली बोर्ड क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है, दैट आई विल टेल यू व्हेन वी आर गोइंग टू रीड फर्दर. लेट्स स्टार्ट. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. Now the author Alphonse Daudet, he said he started for school very late, कि उस दिन वो स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था मॉर्निंग, and was in a great dread. Dread means fear. और उसे बहुत डर था कि आज definitely उसको डांट पड़ेगी, scolding, right? Great dread of scolding. Please circle great dread of scolding. Why circle? Now why these all, why I'm telling you to circle? क्यों बोल रहे हैं सर्कल के लिए? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं. जब हम बोर्ड के आंसर्स लिखते हैं तो वहां हमें ये कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट करने होते हैं अपने आंसर्स में. इवन जो वैल्यू पॉइंट्स भी जो बोर्ड भेजता है वो भी इसी तरह के कीवर्ड्स भेजता है. तो दैट मीन्स ये हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, राइट? सो नाउ द ऑथर सेड स्कूल के लिए उस दिन लेट हो गया था मॉर्निंग में और उसे बहुत फियर था, ड्रेड था. किसका? स्कोल्डिंग. किससे मिलेगी? स्पेशली बिकॉज एम हैमल. प्लीज सर्कल द नेम ऑफ द टीचर, एम हैमल. क्योंकि जो टीचर थे एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. पहला रीजन उसका ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग का क्या था? कि ही वॉज लेट टू स्कूल, राइट? एंड सेकेंड रीजन कि टीचर ने उस दिन उनसे क्वेश्चंस पूछने थे. किस पे पूछने थे? ग्रामर का एक टॉपिक था पार्टिसिपल्स, आप लोगों ने पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में, उस पे टीचर ने क्वेश्चंस पूछने थे. सो सर्कल दिस ऑल्सो. सो देयर आर टू रीजंस ऑफ व्हाट? ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. और वाई? दो रीजंस हैं, राइट? किसके? ऑथर के फियर के. पहला रीजन लेट टू स्कूल, सेकेंड रीजन दैट टीचर वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. एंड ऑथर क्लियरली हम रीडर्स को बता रहा है कि उसे उन पार्टिसिपल्स का एक वर्ड भी नहीं आता था, नॉट इवन फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. सो दीज आर व्हाट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन्स, राइट? Now, for a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. अब ऑथर हमें कह रहा है कि कुछ देर के लिए उसे एक थॉट आया. क्या थॉट आया? कि स्कूल से भाग जाता हूं. जैसे आप लोग क्या करते हैं जब स्कूल नहीं आना होता? यू ट्राई. वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट वर्ड डेफिनेटली, यस. सो ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग, यू नो, दैट थॉट केम. उसके माइंड में भी थॉट आया कि रनिंग अवे मीन्स आज स्कूल अटेंड नहीं करते हैं, स्कूल से बाहर भाग जाते हैं. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. डे आउट ऑफ डोर्स मीन्स आज पूरा दिन बाहर बिताते हैं, राइट? ये भी रनिंग एंड स्पेंडिंग द डे. प्लीज इस लाइन के आगे कहीं भी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एरो बना के लिख लीजिए. इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस. इन शॉर्ट यू कैन राइट डाउन क्यू. जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट बताती जा रही हूँ क्वेश्चंस, यू कैन जस्ट राइट डाउन क्यू, क्यू देयर, राइट? सो ये जो लाइन है, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, व्हाई द ऑथर वांटेड टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स. Right? Again, I'm repeating why the author wanted to run away and spend the day outdoors. Let's continue. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. Now, what is shown here? कि why he wanted to run away? क्यों भागना चाहता था? रीजन है, यहां से अंडरलाइन करेंगे. इट वॉज सो वार्म. रीजन है क्योंकि बाहर बहुत वार्म डे था, बहुत ब्राइट डे था, और जो बर्ड्स का चर्पिंग साउंड सुनाई दे रहा था. कहां पे? वुड्स आर फॉरेस्ट, एज ऑफ द फॉरेस्ट. एंड ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल. एक सॉमिल थी जिसके पीछे एक ओपन फील्ड बनी हुई थी. वहां पे प्रशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? दे वर ड्रिलिंग, एक्सरसाइजेस कर रहे थे, राइट? दे वर प्रैक्टिसिंग. सो या, तो दिस इज द रीजन. प्लीज पॉइंट नाउ फ्रॉम इट वॉज सो वार्म से लेके टिल ड्रिलिंग तक यू कैन मार्क पॉइंट नंबर 2. एंड point number 1 is why? Point number 1 is great dread of scolding. Now I'll tell you ये दोनों points किसके हैं. Question मैंने अभी आपको बताया है, why the author wanted to run away and spend the day out of doors. कि author जो है वो क्यों भागना चाहता था, अपना डे बाहर क्यों स्पेंड करना चाहता था? पहला रीजन कि he was in great dread of scolding, क्योंकि उसको बहुत डर था, फियर था स्कोल्डिंग का. Why? Because the teacher was supposed to ask questions on
पार्टिसिपल्स. वेरी गुड. टीचर ने उस दिन किसके क्वेश्चंस पूछने थे? पार्टिसिपल. तो ये फर्स्ट रीजन हुआ इस आंसर का. सेकंड पॉइंट हुआ इट वाज सो वार्म सो ब्राइट. एंड सेकंड क्योंकि बहुत वार्म डे था, बहुत ब्राइट डे था. बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द फुट टिल ड्रिलिंग. राइट, रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग देयर इन द फील्ड्स. तो ये सारी चीजें उसे लगा ज्यादा क्या है? टेम्पटिंग है. आगे वाली लाइन. तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए. व्हाई ही वांटेड टू रन अवे, कि ये दो क्यों भागना चाहता था? फर्स्ट रीजन रेड ऑफ स्कोल्डिंग, सेकंड रीजन वार्म डे, ब्राइट डे, द बर्ड्स वर चर्पिंग. दिस इज द सेकंड रीजन. Let's continue. It was all much more tempting than the rule for participles. Again, you can see I have written question QU because this is again an important board question. ये important board question है. All much more tempting. It's much more tempting. ये keywords है. Question में आ जाता है कौन सी चीज ऐसे ज्यादा tempting थी? किससे ज्यादा? रूल फॉर पार्टिसिपल्स. मतलब पार्टिसिपल्स के रूल से ज्यादा कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्टिव थी? आई होप टेम्पटिंग का मीनिंग यू नो, अट्रैक्टिव, यू नो, व्हेन आइसक्रीम इज सो टेम्पटिंग, राइट? यू आर गेटिंग मी राइट, राइट? यस. सो इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग. तो द थिंग इज द ऑथर सेड कि ये सारी चीजें ये ज्यादा टेम्पटिंग थी. किससे ज्यादा चीजें टेम्पटिंग थी? पार्टिसिपल्स के रूल से ज्यादा. नाउ इफ दिस क्वेश्चन कम्स, आप साइड में लिख लीजिए एनीवेयर. क्वेश्चन क्यू यू कैन राइट. एज आई टोल्ड यू, कीप राइटिंग दैट वॉट एवर लाइन्स आई एम टेलिंग यू टू राइट और वॉट एवर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू टू mark, these are all important board questions. So it was all much more tempting than the rule for participles. क्या चीज tempting थी participles के rule से ज्यादा? क्या चीज? इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट नंबर 2 आएगा. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. ये आंसर है इसका. यू विल नॉट राइट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. जब हम आपसे पूछे रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग, तब आप दोनों पॉइंट्स देंगे. लेकिन अगर हम पूछे कि भाई क्या चीज इतनी टेम्पटिंग थी पार्टिसिपल्स के रूल से ज्यादा, तो सिर्फ आप पॉइंट नंबर क्या करेंगे? ओनली आई वॉन्ट पॉइंट नंबर 2. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. लेकिन उस दिन क्या हुआ? उसने कहा नहीं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ गई रेजिस्ट करने की. रेजिस्ट किस चीज की करने की? कि नहीं, स्कूल रन नहीं करना है, स्कूल मिस नहीं करना है. एंड फाइनली ही हैड द स्ट्रेंथ टू, courage to face the whatever the punishment or the anger he is going to the teacher is going to show him. So whatever, he was ready to face all this, and then he hurried off to school. Now he said that when he passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जैसे ही उसने टाउन हॉल को पार किया, बहुत बड़ा क्राउड लगा हुआ था. किसके आगे लगा हुआ था? बुलेटिन बोर्ड के आगे. प्लीज राइट डाउन क्यू इन बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्यू लिख लीजिए, बिकॉज अगेन क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड की क्या सिग्निफिकेंस शो करी इस चैप्टर में? So he says, when I passed the town hall, अब town halls are Alsace and Lorraine, we've said, small town, Alsace, right? He says, जब town hall, एक main hall था, उसके बाहर एक bulletin board लगा हुआ था. तो जो भी नए orders प्रशिया को देने होते थे, वो orders उस board पे लिख दिए जाते थे, so that people could read those orders and start following. So he said, जैसे ही उसने town hall को पास किया, एक बहुत भीड़ लगी हुई थी bulletin board के आगे. For the last 2 years, all our bad news had come from there. अब अभी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन आई सेड कि बुलेटिन बोर्ड का सिग्निफिकेंस क्या था? तो पहला पॉइंट आंसर में आएगा लास्ट 2 years all the bad news had come from there. So the author tells us कि लास्ट 2 years उन्हें जितनी भी बैड न्यूज मिली थी, वो सब कहां से मिली थी? इसी बुलेटिन बोर्ड से. मीन्स जितने भी ऑर्डर्स थे वो सब इसी के ऊपर बोर्ड पे लिखे गए थे. नंबर 1 मार्क करिए, क्या बैड न्यूज थी? नंबर 1 द लॉस्ट बैटल, जो बैटल्स वो हारे, नंबर 1. नंबर 2 ड्राफ्ट, मीन्स न्यू लॉज जो भी बने वो ड्राफ्ट. एंड नंबर 3 द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो भी ऑर्डर्स कमांडिंग ऑफिसर के होते थे वो सब. तो जो भी बैड न्यूज होती थी वो सब इस पे लिखी जा. बैड न्यूज किसके लिए? अल्साज एंड लोरेन के लोगों के लिए, राइट? अब एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. अब क्योंकि ऑलरेडी वो लेट हो गया था. कौन? वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन द फर्स्ट स्टैंजा कि ऑथर लेट हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ ऑथर लेट हो गया था. तो विदाउट स्टॉपिंग, उसने कहा बिना रुके हुए, ये देखने के लिए कि भाई भीड़ क्यों लगी हुई है, विदाउट स्टॉपिंग ही थॉट व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि ऐसा क्या मैटर है कि आज फिर भीड़ लगी हुई है बुलेटिन बोर्ड के आगे. सो आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? नंबर 1 lost battles, number 3 draft, number 2 is draft, number 3 the orders of the commanding officer. Clear? Children, hope you've understood.
the chapter so far. For more videos, kindly subscribe, like and press the bell icon. Thank you.